قرآن مجید کا 20واں سورہ سورہ طٰہٰ۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طٰہٰ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کو زحمت میں ڈال دیں۔ یہ تو ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے ہے جن کے دلوں میں خوف خدا ہے۔ یہ اس خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور بلند ترین آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ وہ رحمان عرش پر اختیار و اقتدار رکھنے والا ہے۔ اس کے لیے وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے یا دونوں کے درمیان ہے اور زمینوں کی تہ میں ہے۔ اگر تم بلند آواز سے بھی بات کرو تو وہ راز سے بھی مخفی تر باتوں کو جاننے والا ہے۔ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ کیا تمہارے پاس موسیٰ کی داستان آئی ہے جب انہوں نے آگ کو دیکھا اور اپنے اہل سے کہا کہ تم اسی مقام پر ٹھہرو، میں نے آگ کو دیکھا ہے، شاید میں اس میں سے کوئی انگارہ لے آؤں یا اس منزل پر کوئی رہنمائی حاصل کر لوں۔ پھر جب موسیٰ اس آگ کے قریب آئے تو آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا پروردگار ہوں، لہذا اپنی جوتیوں کو اتار دو کہ تم طویٰ نام کی ایک مقدس اور پاکیزہ وادی میں ہو، اور ہم نے تم کو منتخب کر لیا ہے، لہذا جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یقیناً وہ قیامت آنے والی ہے اور میں اسے چھپائے رہوں گا تاکہ ہر نفس کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جا سکے۔ اور خبردار، تمہیں قیامت کے خیال سے وہ شخص روک نہ دے جس کا ایمان قیامت پر نہیں ہے اور جس نے اپنے خواہشات کی پیروی کی ہے، کہ اس طرح تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور اے موسیٰ، یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرا عصا ہے جس پر میں تکیہ کرتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے درختوں کی پتیاں چھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے اور بہت سے مقاصد ہیں۔ ارشاد ہوا، موسیٰ تم اسے زمین پر ڈال دو۔ اب جب موسیٰ نے ڈال دیا تو کیا دیکھا کہ وہ صاف بن کر دوڑ رہا ہے۔ حکم ہوا کہ اسے لے لو اور ڈرو نہیں کہ ہم عنقریب اسے اس کی پرانی اصل کی طرف پلٹا دیں گے، اور اپنے ہاتھ کو سمیٹ کر بغل میں کر لو، یہ بغیر بیماری کے سفید ہو کر نکلے گا، اور یہ ہماری دوسری نشانی ہوگی تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیاں دکھا سکیں۔ جاؤ فرعون کی طرف جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے عرض کی، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے کہ یہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے اہل میں سے میرا وزیر قرار دے دے۔ ہارون کو جو میرا بھائی بھی ہے، اس سے میری پشت کو مضبوط کر دے، اسے میرے کام میں شریک بنا دے تاکہ ہم تیری بہت زیادہ تسبیح کر سکیں اور تیرا بہت زیادہ ذکر کر سکیں۔ یقیناً تو ہمارے حالات سے بہتر باخبر ہے۔ ارشاد ہوا، موسیٰ ہم نے تمہاری مراد تمہیں دے دی ہے، اور ہم نے تم پر ایک اور احسان کیا ہے۔ جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف ایک خاص وحی کی کہ اپنے بچے کو صندوق میں رکھ دو اور پھر صندوق کو دریا کے حوالے کر دو، موجیں اسے ساحل پر ڈال دیں گی، اور ایک ایسا شخص اسے اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور موسیٰ کا بھی دشمن ہے، اور ہم نے تم پر اپنی محبت کا عکس ڈال دیا تاکہ تمہیں ہماری نگرانی میں پالا جائے۔ اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری بہن جا رہی تھی کہ فرعون سے کہیں کہ کیا میں کسی ایسے کا پتہ بتاؤں جو اس کی کفالت کر سکے، اور اس طرح ہم نے تم کو تمہاری ماں کی طرف پلٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ رنجیدہ نہ ہو، اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو ہم نے تمہیں غم سے نجات دے دی اور تمہارا باقاعدہ امتحان لے لیا۔ پھر تم اہل مدین میں کئی برس تک رہے، اس کے بعد تم ایک منزل پر آ گئے اے موسیٰ، اور ہم نے تم کو اپنے لیے منتخب کر لیا۔ اب تم اپنے بھائی کے ساتھ میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی سے بات کرنا کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا خوف زدہ ہو جائے۔ ان دونوں نے کہا کہ پروردگار ہمیں یہ خوف ہے
کہ کہیں وہ हम पर ज्यादती ना करे या और सरकश ना हो जाए। इरशाद हुआ, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। फिरऔन के पास जाकर कहो कि हम तेरे परवरदिगार के फरिश्तादा हैं, बनी इसराइल को हमारे हवाले कर दे और इन पर अजाब ना कर कि हम तेरे पास तेरे परवरदिगार की निशानी लेकर आए हैं और हमारा सलाम हो इस पर जो हिदायत का इत्तबा करे। बेशक हमारी तरफ ये वही की गई है कि तकजीब करने वाले और मुंह फेरने वाले पर अजाब है। उसने कहा कि मूसा, तुम दोनों का रब कौन है? मूसा ने कहा कि हमारा रब वो है जिसने हर शय को उसकी मुनासिब खिलकत अता की है और फिर हिदायत भी दी है। उसने कहा कि फिर इन लोगों का क्या होगा जो पहले गुजर चुके हैं? मूसा ने कहा कि इन बातों का इल्म मेरे परवरदिगार के पास इसकी किताब में महफूज है, वो न बहकता है और न भूलता है। उसने तुम्हारे लिए जमीन को गहवारा बनाया है और उसमें तुम्हारे लिए रास्ते बनाए हैं और आसमान से पानी बरसाया है, जिसके जरिए हमने मुख्तलिफ किस्म के नबातात का जोड़ा पैदा किया है कि तुम खुद भी खाओ और अपने जानवरों को भी चराओ। बेशक इसमें साहिबान आक़िल के लिए बड़ी निशानियां पाई जाती हैं। इसी जमीन से हमने तुम्हें पैदा किया है और इसी में पलटा कर ले जाएंगे और फिर दोबारा इसी से निकालेंगे। और हमने फिरऔन को अपनी सारी निशानियां दिखला दी, लेकिन इसने तकजीब की और इनकार कर दिया। इसने कहा कि मूसा, तुम इसलिए आए हो कि हमको हमारे इलाके से अपने जादू के जरिए बाहर निकाल दो। अब हम भी ऐसा ही जादू ले आएंगे, लिहाजा अपने और हमारे दरमियान एक वक्त मुकर्रर कर दो जिसकी न हम मुखालिफत करें और न तुम, और वो वादागाह भी एक साफ खुले मैदान में हो। मूसा ने कहा कि तुम्हारे वादे का दिन जीनत ईद का दिन है और उस दिन तमाम लोग वक्त चाश्त इकट्ठा किए जाएंगे। इसके बाद फिरऔन वापस चला गया और अपने मकर को इकट्ठा करने लगा और इसके बाद फिर सामने आया। मूसा ने इन लोगों से कहा कि तुम पर वाय हो, अल्लाह पर इस तरह ना करो कि वो तुमको अजाब के जरिए तबाह बर्बाद कर देगा, और जिसने उस पर बहुतान बांधा वो यकीनन रुस्वा हुआ है। इस पर वो लोग आपस में झगड़ा करने लगे और सरगोशियों में मसरूफ हो गए। इन लोगों ने कहा कि ये दोनों जादूगर हैं जो तुम लोगों को अपने जादू के जोर पर तुम्हारी सरजमीन से निकाल देना चाहते हैं और तुम्हारे अच्छे खासे तरीके को मिटा देना चाहते हैं। लिहाजा तुम लोग अपनी तदबीरों को जमा करो और परा बांध कर इनके मुकाबले पर आ जाओ। जो आज के दिन गालिब आ जाएगा वही कामयाब कहा जाएगा। इन लोगों ने कहा कि मूसा, तुम अपने जादू को फेंकोगे या हम लोग पहल करें? मूसा ने कहा कि नहीं, तुम इब्तिदा करो। एक मर्तबा क्या देखा कि इनकी रस्सियां और लकड़ियां जादू की बिना पर ऐसी लगने लगी जैसे सब दौड़ रही हों। तो मूसा ने अपने दिल में खौफ महसूस किया। हमने कहा कि मूसा, डरो नहीं, तुम बहरहाल गालिब रहने वाले हो और जो कुछ तुम्हारे हाथ में है इसे डाल दो, ये इनके सारे किए धरे को चुन लेगा। इन लोगों ने जो कुछ किया है वो सिर्फ जादूगर की चाल है और बस, और जादूगर जहां भी जाए कभी कामयाब नहीं हो सकता। ये देखकर सारे जादूगर सजदे में गिर पड़े और आवाज दी कि हम मूसा और हारून के परवरदिगार पर ईमान ले आए। फिरऔन ने कहा कि तुम मेरी इजाजत के बगैर ही ईमान ले आए तो ये तुमसे भी बड़ा जादूगर है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। अब मैं तुम्हारे एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पांव काट दूंगा और तुम्हें हुर्मे की शाख पर सूली दे दूंगा और तुम्हें खूब मालूम हो जाएगा कि ज्यादा सख्त अजाब करने वाला और देर तक रहने वाला कौन है। इन लोगों ने कहा कि हमारे पास जो खुली निशानियां आ चुकी हैं और जिसने हमको पैदा किया है, हम उस पर तेरी बात को मुकद्दम नहीं कर सकते। अब तुझे जो फैसला करना हो कर ले, तू फकत इस जिंदगानी दुनिया ही तक फैसला कर सकता है। हम अपने परवरदिगार पर ईमान ले आए हैं कि वो हमारी खताओं को माफ कर दे और इस जादू को बख्श दे जिस पर तूने हमें मजबूर किया था, और अल्लाह सबसे बेहतर है और वही बाकी रहने वाला है। यकीनन जो अपने रब की बारगाह में मुजरिम बनकर आएगा, इसके लिए वो जहन्नुम है जिसमें न मर सकेगा और न जिंदा रह सकेगा। और जो उसके हुजूर साहिब ईमान बनकर हाजिर होगा और उसने नेक अमाल किए होंगे, उसके लिए बुलंद तरीन दर्जात हैं, हमेशा रहने वाली जन्नत जिसके नीचे नहरें जारी होंगी और वो इसमें हमेशा रहेंगे कि
यही पाकीज़ा किरदार लोगों की जजा है। और हमने मूसा की तरफ वही की कि मेरे बंदों को लेकर रातों रात निकल जाओ, फिर इनके लिए दरिया में असा मारकर खुश्क रास्ता बना दो। तुम्हें ना फिरऔन के पा लेने का खतरा है और ना डूब जाने का। तब फिरऔन ने अपने लश्कर समेत इन लोगों का पीछा किया और दरिया की मौजों ने इन्हें बाकायदा ढांक लिया। और फिरऔन ने दर हकीकत अपनी कौम को गुमराही किया है, हिदायत नहीं दी है। बनी इसराइल, हमने तुमको तुम्हारे दुश्मन से निजात दिलाई है और तूर की दाहिनी तरफ से तौरेत देने का वादा किया है और मनोसलवा भी नाजिल किया है। तुम हमारे पाकीज़ा रिज़्क़ को खाओ और इसमें सरकशी और ज्यादती ना करो कि तुम पर मेरा गजब नाजिल हो जाए, कि जिस पर मेरा गजब नाजिल हो गया वो यकीनन बर्बाद हो गया। और मैं बहुत ज्यादा बख्शने वाला हूं उस शख्स के लिए जो तौबा कर ले और ईमान ले आए और नेक अमल करे और फिर राह हिदायत पर साबित कदम रहे। और ए मूसा, तुम्हें कौम को छोड़कर जल्दी आने पर किस शय ने आमादा किया है? मूसा ने अर्ज की कि वो सब मेरे पीछे आ रहे हैं और मैंने राह खैर में इसलिए उजलत की है कि तू खुश हो जाए। इरशाद हुआ कि हमने तुम्हारे बाद तुम्हारी कौम का इम्तिहान लिया और सामरी ने इन्हें गुमराह कर दिया है। यह सुनकर मूसा अपनी कौम की तरफ महजून और गुस्से में भरे हुए पलटे और कहा कि ए कौम, क्या तुम्हारे रब ने तुमसे बेहतरीन वादा नहीं किया था? और क्या इस ऐब में कुछ ज्यादा तूल हो गया है? या तुमने यही चाहा कि तुम पर परवरदिगार का गजब वारिद हो जाए, इसलिए तुमने मेरे वादे की मुखालिफत की? कौम ने कहा कि हमने अपने इख्तियार से आपके वादे की मुखालिफत नहीं की है, बल्कि हम पर कौम के जेवरात का बोझ लाद दिया गया था, तो हमने इसे आग में डाल दिया। और इस तरह सामरी ने भी अपने जेवरात को डाल दिया। फिर सामरी ने इनके लिए एक मुजस्सिमा गाय के बच्चे का निकाला जिसमें आवाज भी थी और कहा कि यही तुम्हारा और मूसा का खुदा है, जिससे मूसा गाफिल होकर इसे तूर पर ढूंढने चले गए हैं। क्या ये लोग इतना भी नहीं देखते कि ये न इनकी बात का जवाब दे सकता है और न इनके किसी नुकसान या फायदे का इख्तियार रखता है? और हारून ने इन लोगों से पहले ही कह दिया कि ए कौम, इस तरह तुम्हारा इम्तिहान लिया गया है और तुम्हारा रब रहमान ही है, लिहाजा मेरा इत्तबा करो और मेरे अम्र की इताअत करो। इन लोगों ने कहा कि हम इसके गिर्द जमा रहेंगे यहां तक कि मूसा हमारे दरमियान वापस आ जाएं। मूसा ने हारून से खिताब करके कहा कि जब तुमने देख लिया था कि ये कौम गुमराह हो गई है, तो तुम्हें कौन सी बात आड़े आ गई थी कि तुमने मेरा इत्तबा नहीं किया? क्या तुमने मेरे अम्र की मुखालिफत की है? हारून ने कहा कि भैया, आप मेरी दाढ़ी और मेरा सर ना पकड़े। मुझे तो यह खौफ था कि कहीं आप ये ना कहें कि तुमने बनी इसराइल में इख्तिलाफ पैदा कर दिया है और मेरी बात का इंतजार नहीं किया है। फिर मूसा ने सामरी से कहा कि तेरा क्या हाल है? उसने कहा कि मैंने वो देखा है जो इन लोगों ने नहीं देखा है। तो मैंने नुमाइंदा परवरदिगार के निशाने कदम की एक मुट्ठी खाक उठा ली और इसको गौशाले के अंदर डाल दिया और मुझे मेरे नफ्स ने इसी तरह समझाया था। मूसा ने कहा कि अच्छा जा, दूर हो जा। अब जिंदगानी दुनिया में तेरी सजा ये है कि हर एक से यही कहता फिरेगा कि मुझे छूना नहीं, और आखिरत में एक खास वादा है जिसकी मुखालिफत नहीं हो सकती। और अब देख अपने खुदा को जिसके गिर्द तूने एहतिकाफ कर रखा है कि मैं इसे जलाकर खाकसर कर दूंगा और इसकी राख दरिया में उड़ा दूंगा। यकीनन तुम सबका खुदा सिर्फ अल्लाह है, जिसके अलावा कोई खुदा नहीं है, और वही हर शय का वसी इल्म रखने वाला है। और हम इसी तरह गुज़िश्ता दौर के वाक़यात आपसे बयान करते हैं, और हमने अपनी बारगाह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान भी अता कर दिया है। जो इससे एराज करेगा वो कयामत के दिन इस इनकार का बोझ उठाएगा और फिर इसी हाल में रहेगा, और कयामत के दिन ये बहुत बड़ा बोझ होगा जिस दिन सूर फूंका जाएगा और हम तमाम मुजरिमीन को बदले हुए रंग में इकट्ठा करेंगे। ये सब आपस में ये बात कर रहे होंगे कि हम दुनिया में सिर्फ 10 ही दिन तो रहे। हम इनकी बातों को खूब जानते हैं, जब इनका सबसे होशियार ये कह रहा था कि तुम लोग सिर्फ एक दिन रहे हो। और ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहाड़ों के बारे में पूछते हैं कि कयामत में इनका क्या होगा, तो कह दीजिए कि मेरा परवरदिगार इन्हें रेजा रेजा करके उड़ा देगा, फिर जमीन को चटियल मैदान बना देगा जिसमें तुम किसी तरह की कजी या नाहमवारी ना देखोगे। उस दिन सब दाई परवरदिगार के पीछे दौड़ पड़ेंगे
और किसी तरह की कजी ना होगी, और सारी आवाजें रहमान के सामने दब जाएंगी कि तुम गुनगुनाहट के अलावा कुछ न सुनोगे। उस दिन किसी की सिफारिश काम ना आएगी सिवाय उनके जिन्हें खुदा ने इजाजत दे दी हो और वो उनकी बात से राजी हो। वो सबके सामने और पीछे के हालात से बाखबर है और किसी का इल्म उसकी जात को मुहीत नहीं है। उस दिन सारे चेहरे खुदाए हय्यो कय्यूम के सामने झुके होंगे और जुल्म का बोझ उठाने वाला नाकाम और रुस्वा होगा। और जो नेक अमाल करेगा और साहिब ईमान होगा वो ना जुल्म से डरेगा और न नुकसान से। और इसी तरह हमने कुरान को अरबी जबान में नाजिल किया है और इसमें तरह तरह से अजाब का तस्करा किया है कि शायद ये लोग परहेजगार बन जाएं या कुरान इनके अंदर किसी तरह की इबरत पैदा कर दे। बस बुलंदो बरतर है वो खुदा जो बादशाह बरहक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के तमाम होने से पहले कुरान के बारे में उजरत से काम ना लिया करें और ये कहते रहे कि परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफा फरमा। और हमने आदम से इससे पहले अहद लिया मगर उन्होंने इसे तर्क कर दिया और हमने इनके पास अज़्म सबात नहीं पाया। और जब हमने मलाइका से कहा कि तुम सब आदम के लिए सजदा करो तो इब्लीस के अलावा सब ने सजदा कर लिया और उसने इनकार कर दिया। तो हमने कहा कि आदम ये तुम्हारा और तुम्हारी ज़ौजा का दुश्मन है, कहीं तुम्हें जन्नत से निकाल ना दे कि तुम जहमत में पड़ जाओ। बेशक यहाँ जन्नत में तुम्हारा फायदा ये है कि न भूखे रहोगे और न बरहना रहोगे, और यकीनन यहाँ न प्यासे रहोगे और न धूप खाओगे। फिर शैतान ने इन्हें वसवसे में मुब्तला करना चाहा और कहा कि आदम मैं तुम्हें हमेशी के दरख्त की तरफ रहनुमाई कर दूं और ऐसा मुल्क बता दूं जो कभी जायल ना हो। तो इन दोनों ने दरख्त से खा लिया और इनके लिए इनका आगा पीछा जाहिर हो गया और वो इसे जन्नत के पत्तों से छुपाने लगे। और आदम ने अपने परवरदिगार की नसीहत पर अमल ना किया तो राहत के रास्ते से बेराह हो गए। फिर खुदा ने इन्हें चुन लिया और इनकी तौबा कबूल कर ली और इन्हें रास्ते पर लगा दिया और हुक्म दिया कि तुम दोनों यहां से नीचे उतर जाओ, सब एक दूसरे के दुश्मन होंगे। इसके बाद अगर मेरी तरफ से हिदायत आ जाए तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा वो ना गुमराह होगा और ना परेशान, और जो मेरे जिक्र से एराज करेगा इसके लिए जिंदगी की तंगी भी है और हम इसे कयामत के दिन अंधा भी महशूर करेंगे। वो कहेगा कि परवरदिगार ये तूने मुझे अंधा क्यों महशूर किया है जबकि मैं सारे दुनिया में साहिब बसारत था। इरशाद होगा कि इसी तरह हमारी आयतें तेरे पास आईं और तूने इन्हें भुला दिया तो आज तू भी नजरअंदाज कर दिया जाएगा। और हम ज्यादती करने वाले और अपने रब की निशानियों पर ईमान ना लाने वालों को इसी तरह सजा देते हैं, और आखिरत का अजाब यकीनन सख्त तरीन और हमेशा बाकी रहने वाला है। क्या इन्हें इस बात में रहनुमाई नहीं दी कि हमने इनसे पहले कितनी नस्लों को हलाक कर दिया जो अपने इलाके में निहायत इत्मीनान से चल फिर रहे थे। बेशक इसमें साहिबान आक़िल के लिए बड़ी निशानियां हैं। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की तरफ से बात तय ना हो चुकी होती और वक्त मुकर्रर ना होता तो अजाब लाजमी तौर पर आ चुका होता। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बातों पर सब्र करें और आफताब निकलने से पहले और इसके डूबने के बाद अपने रब की तस्बीह करते रहें, और रात के औकात में और दिन के अतराफ में भी तस्बीह परवरदिगार करें कि शायद आप इस तरह राजी और खुश हो जाएं। और खबरदार, हमने इनमें से बाज लोगों को जो जिंदगानी दुनिया की रौनक से मालामाल कर दिया है, इसकी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर उठाकर भी ना देखें कि ये इनकी आजमाइश का जरिया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदिगार का रिज़्क़ इससे कहीं ज्यादा बेहतर और पायदार है। और अपने अहल को नमाज का हुक्म दें और इस पर सब्र करें। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिज़्क़ के तलबगार नहीं हैं, हम तो खुद ही रिज़्क़ देते हैं, और आक़िबत सिर्फ साहिबाने तक़वा के लिए है।
اور ये लोग कहते हैं कि ये अपने रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं लाते हैं, तो क्या इनके पास अगली किताबों की गवाही नहीं आई है? और अगर हमने रसूल से पहले इन्हें अजाब करके हलाक कर दिया होता तो ये कहते, परवरदिगार तूने हमारी तरफ रसूल क्यों नहीं भेजा कि हम जलील और रुस्वा होने से पहले ही तेरी निशानियों का इत्तबा कर लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि सब अपने अपने वक्त का इंतजार कर रहे हैं, तुम भी इंतजार करो, अनकरीब मालूम हो जाएगा कि कौन लोग सीधे रास्ते पर चलने वाले और हिदायत याफ्ता हैं।